السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت میں خورشید رضا حشمتی بول رہا ہوں ممبئی سے۔ جی بتائیں حضرت یہ ابھی آپ کی آڈیو وغیرہ کچھ نیٹ پہ ڈالی ہے واٹس ایپ پہ گروپ میں، جی، تو اس میں آپ کی آڈیو میں یہ جو سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے جو آپ نے بولا ہے کہ ادراک حقیقت الہیہ میں انبیاء اولیاء عاجز ہیں، جی تو انبیاء اولیاء عاجز ہیں، آپ نے تطہیر کی وہ بے بس والی عبارت سے استدلال کیا؟ جی، تطہیر کی جو بے بس والی عبارت ہے اس کے جواب میں آپ اس کو لے کر کے لائے ہیں؟ میں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ نہیں، آپ نے کہا نا کہ نہیں، تو استدلال تو آپ اسی سے کر رہے ہیں نا سر؟ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے، محتاج کا مطلب کیا ہے، بے بس کا مطلب کیا ہے؟ حضرت اس کا مطلب تو محتاج کا بے بس کا مطلب اس کا تو ہم بتا دیں گے، ہمارے پاس اس کا جواب بھی ہے سورہ علم نشرہ کی تفسیر سے سرکار مفتی نقی علی خاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کا پورا جواب ہے، لیکن ابھی ہم جواب دینا نہیں چاہتے ہیں۔ پہلے ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں حضرت کہ آپ نے تطہیر کی بے بس والی عبارت سے استدلال کیا، تو آپ اپنے لیٹر عبارت کے نام تائید کر رہے ہیں نہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں جو نہیں ہم پڑھے ہیں پوری؟ نہیں حضرت، وہ تو عبارت حضرت آپ نے پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے اس سے بحث نہیں ہے، لیکن سائل نے سوال آپ سے کیا ہے کہ نبی کو بے بس کہنا کیسا ہے، اس پر آپ نے فرمایا، میں نے اس سے سوال کیا ہے کہ محتاج اور عاجز، ہاں جی آپ نے اس پر محتاج عاجز کہنا کیسا ہے، وہ سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ عبارت جس پہ سرکار نے فرمایا ادراک حقیقت الہیہ میں انبیاء اولیاء عاجز ہیں، مطلب یہ اللہ کی حقیقت کو جاننے سے انبیاء اولیاء عاجز ہیں، یہ سرکار شیر سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبارت ہے، اور یہ آپ نے اس بات پر کہا ہے جس بات پر سائل نے آپ سے سوال کیا کہ بے بس کہنا کیسا ہے، اس پر آپ لے کر کے آئے ہیں نا یہ۔ اور دوسری عبارت میں نے جو کہی ہے کہ اللہ کے سب محتاج ہیں، جی وہ تو نہیں پڑے، یہ آپ نے جو استدلال کیا ہے یہ بے بس والی عبارت ہی سے تو کیا ہے، اسی کی وجہ سے تو آپ یہ لے کر کے آئے ہیں جواب میں نے پوچھا ہے کہ عاجز محتاج اللہ کے سب محتاج ہیں۔ نہیں حضور، وہ جو سوال کرنے والا ہے وہ کوئی عالم نہیں ہے جو آپ کو عاجز و محتاج بتائے گا، لیکن صرف آپ سے سوال اتنا ہے کہ اگر آپ بے بس کہنے پر استدلال میں سرکار شیر سنت کی عاجز والی عبارت لے کر آ رہے ہیں تو کیا آپ عاجز سے معاذ اللہ بے بس مراد لے رہے ہیں؟ نہیں، محتاج سے کیا مراد لیں گے؟ نہیں وہاں سے نہیں، محتاج والی بحث نہیں ہے، نہیں اگر چلیے ٹھیک ہے، آپ سرکار شیر سنت اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں اور آپ کے پیر و مرشد پر اظہری میاں صاحب نے فتاوی تاج شریعہ نکالو تو فتاوی تاج شریعہ کے حوالے سے انہوں نے الزام لگایا ہے جو اللہ کو محتاج لکھے معاذ اللہ وہ قرآن کی تکذیب کرتا ہے، شریعت پر افترا کرتا ہے اور احانت انبیاء اولیاء مقصود ہے۔ آپ کے پیر و مرشد اظہری نے فتویٰ دیا ہے، اب بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ فتویٰ دیا ہے، یہ میں فتاوی تاج شریعہ کھول رہا ہوں، کیا لکھا ہے؟ فتاوی تاج شریعہ میں محتاج کہنے پر جو ہے فتویٰ دیا ہے اظہری میاں صاحب نے آپ کے پیر و مرشد پر۔ اب آپ جو ہے میں کھول رہا ہوں، میں سنا رہا ہوں پورا فتویٰ سنا رہا ہوں۔ سوال کیا کسی سائل نے، خدا فرماتا ہے قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں سب پیرو پیغمبر، سمجھ رہے ہیں؟ خدا فرماتا ہے قرآن کے اندر میرے مختار ہیں سب پیرو پیغمبر، اگر یہ غلط ہے تو اس کا پڑھنا اور ان پر داد دینا کیسا ہے؟ تو اظہری میاں صاحب جواب میں صحیح فرماتے ہیں پہلا شعر قرآن کریم پر افترا ہے، کون سا؟ میرے محتاج ہیں سب پیرو پیغمبر، سمجھ رہے ہیں؟ پہلا شعر قرآن پر افترا ہے اور انبیاء اولیاء کی احانت پر مشتمل ہے، اور قرآن نے مطلق بلا تخصیص انبیاء اولیاء فرمایا ہے، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو، اس میں کسی قسم کی تخصیص نہ فرمائی، تو انبیاء اولیاء کی تخصیص از خود کرنا قرآن پر افترا ہے۔ تو اگر آپ سرکار شیر سنت کی اس عبارت سے ہیں کہ سب اللہ کے محتاج ہیں، اگر اس عبارت سے اگر آپ معاذ اللہ رب العالمین انبیاء اولیاء مراد خود آپ لے رہے ہیں، جبکہ سرکار شیر سنت کی مراد وہاں پر ظاہر نہیں ہے کہ سرکار شیر سنت نے انبیاء اولیاء ہی کو نہیں ہے، لیکن سب آپ شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ ہلو ہلو جی حضرت، میں ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہوں، گھبرائیے نہیں، میرا بالکل ختم ہوا ہے، میں حضرت ریکارڈنگ نہیں کر رہا ہوں،
मैं भी मौलवी आदमी हूँ, मुझे सुनिए आप मेरे दादा पीर के मुरीद हैं। इस बुनियाद पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आप जो है सरकार शेर सुन्नत होता हूँ, मेरे दादा पीर हैं। तकलीफ ये होती है कि आपने जो है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन इस तरीके से आपने बोला, जब मैंने सुना व्हाट्सएप पे आया, हालांकि मैं व्हाट्सएप चलाता भी नहीं हूँ, किसी दूसरे ने मुझे व्हाट्सएप दिखाया तो मैंने आपके ताल्लुक भी सुना, तो मैं आपके ताल्लुक से बहुत अच्छा गुमान रखता था, लेकिन जब हमने आपके ताल्लुक से सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा नंबर दो मौलाना साहब का, मैं बात करता हूँ। तो हजरत ये यहाँ पर सरकार शेर सुन्नत अल्लाह तआला को, जैसा सरकार शेर सुन्नत तखसीस नहीं की, लेकिन आप अंबिया औलिया की तखसीस खुद कर रहे हैं, सरकार शेर सुन्नत तखसीस नहीं की। हेलो, अब वो तो क्या इस्तिफ़ा किया, क्या फतवा दिया? नहीं हजरत मैं तावी शरिया के हैं हजरत, आप तावी शरिया के जो है हजरी मियां साहब के आप जो है समझ लीजिए आप नुमाइंदे हैं, आप उनके वकील हैं। नहीं मैं जी खादिम पर जरूरी है कि मखदूम के ऊपर होने वाले हर एतराज़ात का दिफा करे। वो तो पूरी इबारत हम पढ़ेंगे, देखेंगे, तब बताएं। अरे मैं अभी आपके पास पूरा फतवा हजरी मियां का पूरा फतवा मैं अभी आपके पास फोटो कॉपी स्कैन करा करके आपके पास भेज दे रहा हूँ। आप जानिए, आपका काम जानिए, आपको मालूम कि नहीं मालूम, अल्लाह उसका रसूल और आप बेहतर जानते हैं, इसलिए कि आप अपने बारे में मैं को हमारी हालत पे छोड़ दीजिए। आप लोग काहे परेशान? नहीं तो हमने तो आप शेर सुन्नत सरकार रज़ी अल्लाह तआला पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप जो है बेबसवारी इबारत पर इस्तेदलाल कर रहे हैं आकर के आजिज़ी। आपको माज़अल्लाह आप सूरह अलम नशरा की हजरत अभी तक मैं आपका खादिम था जब तक आप हक पर थे, लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ आप सूरह अलम नशरा की तफसीर पढ़ लीजिए, मुफ्ती नकी अली खान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। आप अपने पीर मुर्शिद पर कभी एतराज़ नहीं करेंगे हजरत। और आप जो मोहताज से सरकार शेर सुन्नत की उस इबारत, मोहताज वाली इबारत से जो आप तखसीस कर रहे हैं ना, वो आप अपने पीर मुर्शिद के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, जबकि सरकार शेर सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला वो आप कह रहे हैं। नहीं तो आप लेटर पैड पे लिख के दे दीजिए कि आजिज कहना मोहताज कहना ही है, हकीकत इलाहिया इदराके हकीकत इलाहिया में अंबिया औलिया आजिज हैं, इस आजिज से बेबस मुराद है जो ततहीर ने लिखा है। ये मैं क्यों लिख के दे दूं? आप लिख के आप इस्तेदलाल क्यों कर रहे हैं हजरत? कुछ आप नहीं लिख के दे सकते हैं? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, जिसका मतलब आप बता दीजिए, आप लोग ज्यादा जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं। तो आप नहीं इस्तेदलाल जो आप कर रहे हैं तो हजरत आप लिख के देंगे तो कौन देगा? नहीं मुझे लिख के नहीं देना। तो आप इस्तेदलाल मत करिए, तो इस्तेदलाल आपने क्यों किया? मैं आप लोगों से कुछ बात ही नहीं करना चाहता। अरे हजरत कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? आप बात मतलब आप जो चाहेंगे वो बोलते रहेंगे, अगर आपसे सवाल किया जाएगा तो आप ये कहेंगे कि मतलब मैं आप लोगों से बात नहीं करना चाहता। मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ, जब आदमी कोई समझने की कोशिश नहीं आप इतना नहीं, आप मैं समझने ही कि आप इतना सब कुछ बोलने के बाद, सरकार शेर सुन्नत के ऊपर बहुतान लगाने के बाद, सब कुछ बोलने के बाद, और आप ये कह करके जा रहे हैं। मैंने क्या बहुतान लगाया? आपने कहा नहीं कि सरकार शेर सुन्नत उन्होंने ये लिखा है कि अल्लाह के सामने सब मोहताज हैं, उसमें ऑडियो हम कर रहा है सामने नहीं, अल्लाह के सब मोहताज हैं। नहीं, आपने लिखा है कि अंबिया औलिया अल्लाह के सामने सब मोहताज हैं, उसमें ऑडियो मौजूद है। नहीं वो तो गलती से सामने निकल गया था, सामने नहीं कहना चाहिए था, लेकिन ये क्या सुन्नत की तहरीर में ये कि अल्लाह के सब मोहताज है तहरीर में, लेकिन अंबिया नहीं, उससे आप अंबिया औलिया मुराद ले रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी मुराद सब में कौन कौन शामिल है ये बता दीजिए। मैं इसमें तो बता रहे हैं, अदरी मियां साहब बता रहे हैं, वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह बेनियाज है, तुम सब उसके मोहताज हो। कुरान शरीफ की आयत का तर्जुमा है, सूरह मोहम्मद आयत नंबर 38। इसमें किसी किस्म की तखसीस ना फरमाई तो अंबिया औलिया की तखसीस खुद करना कुरान पर इफ्तरा है, जिससे मकसूद इहानत अंबिया औलिया है, और उस इहानत आमिर जुमले की निस्बत कुरान करीम की तरफ नुक्से दीनी है, और कुरान करीम ने आम लोगों के लिए तो वो फरमाया जो ऊपर गुजरा, ये वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकरा, अल्लाह बेनियाज है, तुम सब उसके मोहताज हो। सरकार शेर सुन्नत अल्लाह तआला अन्हु की वो इबारत कि अल्लाह के सब मोहताज हैं, ये अंबिया औलिया के लिए नहीं है, यह आयत करीमा से साबित होता है। अब आगे लिखते हैं कि कुरान करीम ने आम लोगों के लिए दो फरमाया जो ऊपर गुजरा, और अंबिया औलिया के लिए यूं फरमाता है, इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। अगर आप माअल्लाह रब्बिल आलमीन शेर सुन्नत अल्लाह तआला अन्हु की मुराद को अपनी जानिब से बयान कर रहे हैं कि सरकार शेर सुन्नत की मुराद भी वही थी कि अंबिया औलिया अल्लाह के मोहताज हैं, तो माअल्लाह रब्बिल आलमीन आपके पीरो मुर्शिद पर हजरी मियां ने फतवा दिया है इहानत अंबिया औलिया का। आप बताइए क्या जवाब देंगे? नहीं मैं मुराद नहीं ले रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ। तो आपकी हजरत मुराद क्या है? मैं आपकी मुराद जानना चाहता हूँ, आपकी मुराद पर सब कुछ नहीं ले रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ इतना। नहीं सब में कौन कौन शामिल हजरत आप तकहीर को बचाने के लिए माअल्लाह बेजा जो है उसकी हिमायत कर रहे हैं। नहीं तो उसने नहीं साहिल ने हजरत साहिल ने न तकहीर के साथ तकरीर करता हूँ, न तकहीर की किताब पढ़ता हूँ। हजरत साहिल ने नहीं साहिल ने सवाल तो आपसे यही कहा है, बेबस कहना कैसा है, उस पर आप लेकर के आए आजिज वाली बात।
हमने नहीं कहा, जिसने कहा उससे जाके पूछिए। नहीं, आजिज वाली इबारत तो आप ही लेके आए ना उसके इस्तेदलाल में, आजिज वाली इबारत शेर सुन्नत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आजिज करेंगे तो क्या करेंगे, कुछ तो हमको बोलना ही पड़ेगा क्या, लेकिन हमें माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन आप जो भी चाहेंगे बोलेंगे आप, अगर कोई आपसे सवाल करे। नहीं, हमसे हमारे ताल्लुक से कोई बात पूछिए, दूसरा कोई अगर कुछ क्या कहता है क्या लिखता है उससे पूछिए। नहीं तो आप अच्छा मतलब जितने फतवे फतावों में पूछे जाते हैं आला हज़रत सरकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, सरकार शेर सुन्नत से, मुफ्ती आज़म से, तो उन्होंने तो ये नहीं फरमाया कि मेरे ताल्लुक से पूछिए कौन क्या कह रहा है, जाकर के उससे मालूम करिए, वो भी ये फरमान, वो भी मैंने जो बात कही हो उसके ताल्लुक से बात कीजिए। नहीं, अगर किसी मुसलमान ने हजरत इंद शरा कोई जुर्म किया है अल्लाह और रसूल की बारगाह में या सहाबा की बारगाह में या औलिया इकराम की बारगाह में, तो अगर किसी मुफ्ती से पूछने जाएंगे कि ज़ैद ने ऐसा ऐसा किया है, इसके लिए क्या हुक्म है, तो मुफ्ती ये कहेगा कि जाकर के उससे पूछो, मुझसे मेरे बारे में पूछो। ये मुफ्ती नहीं ऐसा थोड़ी नहीं, ऐसा थोड़ी, बहुत दारुल इफ्ता ठीक है, लेकिन कोई जरूरी है कि हर आदमी हर पूछ लीजिए ना, तो ये कहना मुफ्ती का सही होगा कि और दारुल इफ्ता भी है वहाँ जाकर पूछिए, मुझसे मत पूछिए, ये कहना दुरुस्त है? गलत होगा, इससे कोई मतलब नहीं है। नहीं, इफ्ता के नहीं हजरत, इफ्ता बोलने के बाद इफ्ता के उसूलों में क्या कहीं जी, इफ्ता के उसूलों में कहीं ये उसूल है कि अगर कोई सवाल करने साइल आए और अगर आप समझ रहे हो कि मैं फंस रहा हूँ तो किसी दूसरे के पास भेज दो? नहीं, वो और हमारे यहाँ भी दारुल इफ्ता आप इस्तेसा लिख कर भेज दीजिए, इंशाल्लाह जवाब चला जाएगा। अरे हजरत आप मुझे वो लिख कर, मैं अभी लड़के को भेज रहा हूँ बाराबंकी, आप रदौली शरीफ में रहते हैं, मैं अभी आपके मदरसे में, आप बोलिए, मैं आपके मदरसे में भेज रहा हूँ, लड़के को कागज लेके और पेन लेकर आप अपने लेटर पैड पे लिख के दे दीजिए कि आजिज से बेबस मुराद है। नहीं, मैं वो कागज को लिख के दे दूँगा। अरे तो फिर आप बोल क्यों रहे हजरत, फिर आपको बोलना ही नहीं चाहिए, वो आपकी ऑडियो आम कर रहा है, आम करने वाला है कि आपने लिखा, क्यों बार बार पूछा जा रहा है? अरे तो हजरत बार बार पूछा जाएगा तो क्या मतलब, आप माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन आप जो चाहेंगे वो बोलते रहेंगे? नहीं, जो से वैसे सुन्नत लिखा हुआ मैंने पढ़ के सुना दिए, तो सरकार शेर सुन्नत नहीं, तो सरकार शेर नहीं, हाँ यही तो है, आज सरकार शेर सुन्नत जो लिखा है उसको आपने सुनाया तो बेबस वाली इबारत की बुनियाद पे सुनाया, साहिल ने बेबस का सवाल किया उस पर आपने सुनाया, तो इसका मतलब आप बेबस से इस्तेदलाल कर रहे हैं। नहीं, बात करूँ, आपको जो समझना वो समझ लीजिए। नहीं समझना।